پہ میرا ایک بیان آیا ابھی، آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ ابے ان کو کیا پتا، یہ کوئی میڈیکل بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، بہت زیادہ چلی ہے، وہ ایک ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے، اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی؟ یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ بھیگ رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے، ہزاروں میں، مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا، تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھئی کیوں حلال نہیں ہے؟ کیوں آپ کو کیا کہہ رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں، لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی. میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھائی، نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا، فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا، یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں پاش کر رہے ہو؟ خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں؟ مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے، نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں، ابھی ڈائری میں لکھ لیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی، بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. صرف بچے ہی نہیں پیدا کر رہے اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے؟ دوائیں نہیں، کھجور، دودھ، سیب. بات آ رہی ہے سمجھ؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگننسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ؟ کھجوریں کھلاؤ، دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار میں. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا، ورنہ بوڑھی ہو جائے گی، ورنہ خراب ہو جائے گی. وہ 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے، خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے، آرام کا خیال کیا جائے، جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بالکل، وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے، اس کی خوراک کا خیال کیا جائے تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں، ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کی اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی، اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس پہ میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں؟ میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے، لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنائے جا رہا ہے، لکھ کے بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے،
फौरन उस एंटीबायोटिक के असरात औरत की फीड में जाएंगे और बच्चे की पहला जो घूंट उसके पेट में उतरेगा ना, वो ऑगमेंटन का जाएगा। भाई मां जो खाती है दूध में फौरन असरात आते हैं। बच्चा पहले दिन से एंटीबायोटिक खाना, भाई ऑपरेशन तो मां का हुआ, बच्चे को क्यों खिला रहे हो? इसलिए मेरे भाई अपने आप को इस अजाब से बचाओ और डॉक्टरों को अल्लाह का वास्ता के डॉक्टर ऐसा करती क्यों है जो लेडी डॉक्टर है? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है ना 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है। समझ रहे हो? डॉक्टर के पास इतना टाइम, कह रहे क्या बार बार पेशेंट आया भी नहीं, जाओ वापस अगले हफ्ते वापस आना यार, फिर 3-4 घंटे भी लग सकते हैं उस प्रोसेस में। कहते छोड़ो यार, इतना टेंशन लेने की नहीं है, उन्होंने निपटाने होते हैं। ये बिजनेस बन चुका है, कारोबार बन चुका है, ये इंसानियत की खिदमत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं, सारे कभी भी खराब नहीं होते। ये जो डॉक्टर हमें ऐसी चीजें बता रहे हैं, जाहिर है ये अच्छे हैं तभी तो बता रहे हैं कि यार ये मिंबर पे बताओ लोगों को। कल एक डॉक्टर है, बहुत माहिर डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताने पर पाबंदी है। उन्होंने बहुत मुल्कों की डिग्री है उनके पास, उन्होंने भी ये बात बताई कि बहुत कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है मेडिकल साइंस की फील्ड में, और डॉक्टर अपने पैसे बना रहे। एक और बात आपको बताऊं, ये जो डॉक्टर बात बात पे टेस्ट लिख के देते हैं, लेबोरेटरी वालों से इनके खांचे, मेरे यहां थोड़ा सा गर्दन में दर्द रहता है, मैं क्योंकि जब मैंने 8-10 साल पढ़ा है ना, तो गर्दन ऐसे करके पढ़ा है मैंने। उसका मुझे नुकसान क्या हुआ कि मेरे यहां कभी कभार पेन शुरू होता है। तो मैं कल एक फिजियोथेरेपी के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं उनके पास चला गया, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि दर्जनों डिग्रियां उन डॉक्टर के पास, क्योंकि मौलवी नहीं है वो, बल्कि मौलवियों के खिलाफ है वो। मुझे ही बैठ के मुफ्तियों के खिलाफ तकरीर करना शुरू कर दी। तो मैं चुप करके, क्योंकि मेरी गर्दन का मसला था, हम सुन रहे हैं अपने खिलाफ, कह रहे हैं मौलवी 2 नंबर, अब ये मौलवी। मैंने कहा ज्यादा बोला तो ऐसा ना कड़क करके कुछ कर दें, अभी तो फिलहाल जैसे बिरदी हैं भाई आप सही हो। उनको मैंने कह दिया जुम्मे के बयान में आए किसी दिन, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो 50 लाख की मशीन है, अब ये प्राइवेट अस्पतालों ने MRI की मशीनें मंगवा ली। अब जिनके सर्वाइकल पेन होता है, अब उन मशीन वालों को पता है कि 50 लाख की मशीन है, तो जब तक इस पे लोग टेस्ट नहीं करवाएंगे ये हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। तो डॉक्टरों से उन्होंने खांचे खोले में, जरा सा आपके कमर में पेन है, MRI करवा लो, डॉक्टर लिख के देगा, और फिर उससे खांचा भी खोला हुआ है कि इतने पैसे मेरे, इतने तुम्हारे। और मुझे इसकी तस्दीक ऐसे भी होती है कि मेरे पास परसों सऊदीया से कॉल आई, या सऊदीया से पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि मेरी क्या अर्निंग जायज है? मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं एक मशीन पे बैठता हूं, एक्सरे मशीन है, और मैं लोगों के एक्सरे करता हूं, तो डॉक्टरों की तरफ से पर्चियां आती हैं कि इतना हमारा है, इसमें इतना किसका है? हमारा है। तो क्या मेरे लिए डॉक्टर को ये पैसे देना जायज है? मैंने कहा आपके लिए जायज हो या ना हो, डॉक्टर के लिए लेना बहरहाल हराम है। मरीज उसके पास इसलिए नहीं आया कि आप वहां से अपने अलग से खांचे खोल के रखें। तो ये आपकी मेडिकल साइंस की फील्ड में हो रहा है, जो कि हो रहा है। इसलिए अल्लाह का वास्ता हद्दल इम्कान अपने आप को डॉक्टरों से बोलो भाई बचाओ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से, तमाम डॉक्टर बच्चों की पहुंच से दूर रखो। और अगर डॉक्टर के पास जाना है तो पहले जैसे किसी मौलवी के पास जाने से पहले उसके दर्जनों बयानात सुनते हो, बहुत अच्छी तरह तहकीक करते हो कि 2 नंबर आलिम तो नहीं है, इसी तरह तहकीक करोगे ये 2 नंबर डॉक्टर तो नहीं है। और ये भी आपको बता दूं, जो 2 नंबर होता है अक्सर उसके पास रस ज्यादा होता है। अक्सर 100% ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के पास भी होता है, लेकिन अक्सर 2 नंबरों के पास रश ज्यादा होता है। अच्छे लोग पब्लिक को समझ, मिसाल के तौर पर आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं एक्सरे करवा लूं, नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई, यूं 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 करो ठीक हो जाएगा। ये कोई डॉक्टर है? आप क्या कहोगे? ये कोई डॉक्टर है। डॉक्टर साहब को इसमें दवा, कोई दवा की जरूरत नहीं है भाई, इस्तरी गर्म करके, इस्तरी तो नहीं, यानी थोड़ा सा सिकाई कर लिया तो।
कहीं डॉक्टर ना कोई पर्चा लिख के दिया, ना कोई बड़ी भरकम फीस 20 रुपए ली और मशवरे के वो भी, और मैं वैसे ही जैसा गया था वैसे ही आ रहा हूँ, ना कोई पर्ची नहीं मेरे पास। ऐसे ऐसे तो मैं वैसे भी कर लूं। भाई प्रॉब्लम ही ये है कि आप कंप्यूटर पे यूं करके बैठे रहते हैं। तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही मशवरा दिया, यार थोड़ा सा हिलो जुलो, एक्सरसाइज करो। तो ऐसे डॉक्टर के पास रश। मेरी बच्ची बीमार थी तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गया उसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने एक कुछ तो दवाएं लिख के दी और कुछ टेस्ट लिख के दे दिए। तो हमारे एक बड़े अच्छे खानदानी डॉक्टर हैं, मैं उनके पास गया। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये डॉक्टर साहब ने ये लिख के दिया, ये टेस्ट। उन्होंने कहा इस टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इस टेस्ट की वजह से अगर ये बीमारी निकल आई ना कि ये बच्चे में बीमारी है, तो भी यही दवाएं हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी हैं। और अगर ये ट्रेस हो, ये पता चलता ही बीमारी नहीं है, फिर भी दवा यही खिलानी पड़ेगी। लो भाई, खाम खा के टेस्ट। और वो डॉक्टर भी माशाल्लाह बाशरा थे, दाढ़ी भी थी उनकी। क्या करें आदमी, कहां जाए यार। न दाढ़ी वाले पर एतमाद कर सकता है, न टोपी वाले पर। जो टोपी पहनी है वही आपको पहना देता है। वो टोपी पहनी भी इसलिए कि बवक्ते जरूरत वो टोपी किसी को पहना सके। खैर, इसलिए ये इतना ज्यादा वो ना करें, मैं बात कर रहा हूं तो कुछ इसके पीछे लॉजिक है। अब सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर ऑपरेशन तो करते ही, हम क्या करें। जाहिर है डॉक्टर आपके जज्बात से, सब नहीं, बार बार बता रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं। वो अस्पताल वाले जब करते हैं तो क्या करें। तो एक मेरी तजवीज है, कोई इस्लाम नहीं है कि आप इसको पत्थर पे लकीर समझ के बिल्कुल आप इसको पकड़ ले मजबूती से। तो एक तजवीज है जिसमें आप 100 दफा मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत नहीं बयान कर रहा, मेरा एक तजर्बा है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपनी जिम्मेदारी पर अगर ये तजर्बा करना चाहे तो कर सकते हैं। वो ये कि किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवा दें, सही है, ताकि ऐन वक्त पर अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हो गया, जैसे कि इसका इम्कान बहरहाल होता है, हजारों में कोई एक चांस इसका भी होता है केस बिगड़ जाए। तो अगर ऐन वक्त पे केस बिगड़ा तो डॉक्टर फिर अस्पताल वाले लेते नहीं। और किसी देसी जो दाइयां होती है ना, उनसे राब्ता रखें। नहीं यारी बात, जो दाइयां होती हैं हर महल्ले में, कहीं गरीब आबादियों में होती हैं दाइयां, मशहूर होंगी, उस दाई से कांटेक्ट करें कि भाई हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हम चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो। वो दाइयां बड़ी माहिर होती हैं गांव देहातों की, और यहां कराची में भी बहुत हैं। वो दाइयां आपको बगैर एक्सरे के चेक करके बता देंगी कि मसला क्या है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। सही है ना? तो बहुत आराम से हिसाब किताब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें हम डॉक्टरों को दिखाएं। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो ये बीमारी है, इसमें डॉक्टर के पास जाएं।